Friends, let's talk about a very important topic of one of the chapter of history, India's marches ahead, and that topic is the Indian Independence Act of 1947. This act was very important for our country. It was historic because it granted independence to our country, and at the same time it also bifurcated it. Before starting the topic, first of all, you understand one thing, that during the British period, India had two parts. During the British period, India had two parts. One part was called as British India and other were the princely states. British India means that part of India which were under the direct control of the British government. Okay, British India was that part of India which were under the direct control of the British government, such as Central Provinces, United Provinces, Bengal Presidency, Bombay Presidency, Madras Presidency. These territories were under the direct control. And second were the princely state. Princely states were those small kingdoms and petty principalities of India which were ruled by the local rajas, princes, etc. under British paramountcy. That means that princely states were independent but under the indirect control of the British government. So there were two parts of India, British India which were under the direct control, and princely state which were ruled by the local rajas and the princes under the supervision of the British government. And it was the British India which was divided into two parts, India and Pakistan, not the princely state. Okay, India was divided into two countries. We all know in 1947 that was British India. It was the British India which was divided into two parts, India and Pakistan. And the princely states were given the option to join either India or Pakistan. मतलब जो डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का वो ब्रिटिश इंडिया का हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स का नहीं हुआ था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में तो लोकल राजा रूल करते थे। तो इनको ये अधिकार दिया गया कि आप चाहो तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, और अगर चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ये 1947 में जब इंडिया को आज़ाद किया जा रहा था तो ये ऑप्शन दिया गया था प्रिंसली स्टेट में। एंड एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ओके, नाउ see, the Indian Independence Act was the last act formulated by the British government to regulate the affair of India's administration. This Indian Independence Act was also known as the Mountbatten Plan because this act was drafted by at the initiative of Lord Mountbatten, who was the last British Governor General of India. This act was passed by the British Parliament on 5 July 1947 and it received its royal assent on 18th July 1947. तो दिस वाज द लास्ट एक्ट। हमें पता है कि अंग्रेजों ने टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट बनाए, है ना। एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, then Government of India Act 1935 and Indian Independence Act of 1947. But this act was formulated to decide the fate of India. What would be the fate of India after its independence? See, what were the features? First of all, this act provided for two dominion status, India and Pakistan. इस एक्ट ने ये कहा कि इंडिया को अब दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। Second, the boundaries between the two dominion states were determined by a boundary commission which was headed by Sir Cyril Radcliffe. Okay, Sir Cyril Radcliffe. Third, this act provided for the partition of Punjab and Bengal and separate boundary commission to demarcate the boundaries between them.
So first of all, the act provided for two dominion status, India and Pakistan. The boundaries between the two dominion status were to be determined by a boundary commission. एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जो जो बाउंड्री बनाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दो स्टेट को खासकर डिवाइड किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तो पंजाब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब अंडर इंडिया, वेस्ट पंजाब गोज टू पाकिस्तान। Then one more state was divided, that is Bengal, into East Bengal and West Bengal. West Bengal remain under India, East Bengal goes into the side of Pakistan. Now, the Act of 1947 provided for the establishment of a new state, that is Pakistan. And पाकिस्तान को कौन कौन सा टेरिटरी दिया गया? देखिए पाकिस्तान को कौन कौन सा टेरिटरी मिला। देखिए एक्चुअली ये पाकिस्तान नाम ये क्वाइंड हुआ था, इस नाम को सबसे पहले इस नाम को इन्वेंट किया था एक पर्सन ने जिनका नाम है चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, के आई फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड तान फॉर बलूचिस्तान। दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज़ टू कवर ऑल दिस टेरिटरी। और हुआ भी यही। पाकिस्तान वाज टू कॉम्प्राइज द वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, टेरिटरीज ऑफ द सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिलहट डिवीजन ऑफ असम। असम का एक डिस्ट्रिक्ट था सिलहट, यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, वो भी पाकिस्तान को मिला। बहावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान एंड 8 अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बलूचिस्तान। These territories, these areas, regions came under the control of Pakistan. You can see the map of Pakistan in the right side. Now the authority, बाकी जितने टेरिटरी थे that remain under the control of, that remain under India. Rest goes to Pakistan. इसके अलावा अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मैंने आपको कहा 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स को क्या दिया गया? प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन से थे? बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कश्मीर वाजा प्रिंसली स्टेट, भोपाल वाजा प्रिंसली स्टेट, मैसूर वाजा प्रिंसली स्टेट, ट्रैवनकोर वाजा प्रिंसली स्टेट, है ना। राजपूताना में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। कुर्ग वाजा प्रिंसली स्टेट्स, बहुत जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इनको ये फ्रीडम दी गई कि आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। तो लगभग 560 प्रिंसली स्टेट जो थे ना वो इंडिया को ज्वाइन किए, और बाकी 4-5 प्रिंसली स्टेट जो थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन किए। तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वे आर लाइंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट्स वाई दे ऑप्ट टू ज्वाइन इंडिया। ओके, हालांकि इनको ये भी फ्रीडम दिया गया था कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, है ना। नाउ बोथ द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर टू हैव गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। इंडिया और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल्स होंगे, है ना, तब तक जब तक कि वहाँ इलेक्शन नहीं हो जाता है और वहाँ की अपनी सरकार नहीं बन जाती है। बोथ दिस टू डोमिनियन वेयर टू बी गवर्न बाय द गवर्नर जनरल हु विल बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। एंड द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ कॉमन जनरल गवर्नर जनरल, ये बोथ ऑफ देम एग्रीड। कॉमन गवर्नर जनरल भी हो सकता है, दोनों को जो साथ साथ रूल करे अगर वो दोनों चाहे तो, लेकिन दोनों का गवर्नर जनरल अलग अलग थे। नाउ the constituent assemblies of both the states were free to make constitution of their respective countries. Now both these two countries were given the right to form their own constituent assembly to make a constitution so that they would run the administration of their country. Okay, तो हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में इसको फॉर्म किया गया और 2 साल 11 महीना 18 दिन में हम लोगों ने संविधान बना लिया और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान को लागू कर लिया। पाकिस्तान को काफ़ी वक्त लगा संविधान बनाने में। ओके, 1956 में पाकिस्तान की संविधान जाके बनी थी, हमारी तो 50 में ही बन गई थी। 1950 में पाकिस्तान की संविधान कंप्लीट हुआ था 1956 में। ओके, और इसी संविधान के अनुसार जो है दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन अब चल रहा है। और जब तक संविधान नहीं बना था बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश टेरिटरीज, पाकिस्तान एंड इंडिया, बोथ दिस टू टेरिटरीज were to be governed in accordance with the Government of India Act 1935. So till the making of Constitution, both these two territories were to be governed according to the provisions of the Government of India Act 1935. Any modification or omission, कोई भी अगर चेंजेस लाना होगा तो वो गवर्नर जनरल लाएगा, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब यहाँ पे रूल नहीं करेगी, ठीक है, गवर्नर जनरल चले जाएंगे।
मतलब इंडिया का अपना गवर्नर जनरल थे, कौन थे? सी राजागोपालाचारी। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको वहाँ पे कायदे आजम भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ओके। Those civil servants who had been appointed before the August 15, 1947 will continue in service with same privilege. जो भी सिविल सर्वेंट, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो आज़ादी से पहले अपॉइंट हुए थे, वो लोग अपने सर्विस को कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो इंडिया में रहे या पाकिस्तान में। Now what was the result? Muhammad Ali Jinnah left for Karachi on 7th August 1947. Here the Constituent Assembly of Pakistan met on 11th August 1947 and elected him the President of Pakistan. Okay. 3 days later he was sworn in as Governor General of Pakistan, है ना? And in this way we find that on the midnight of 14th August and 15th August 1947, मतलब 12 बजे से पहले पाकिस्तान बन गया, इसीलिए 14 अगस्त को वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और 12 बजे इंडिया को आज़ादी, इंडिया बना, इंडिया की आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947, है ना? तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस मनाते हैं। तो in this way we find that on the midnight of 14th August and 15th August 1947, India and Pakistan came into existence. So both India and Pakistan, we can say that were the outcomes of the Indian Independence Act of 1947. Okay. Now see this video. Through this video also you can be able to get some more information about the Act of 1947. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माउंटबेटन प्लान 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर्स 3 जून 1948 से पहले पहले इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफर करेंगे और इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। उसके अगले ही दिन 21 फरवरी 1947 को वाइसरॉय ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया। अब नए वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान प्रपोज किया। ये प्लान था द माउंटबेटन प्लान, और इसी प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करके 2 नई कंट्रीज बनाने का डिसीजन लिया था। ये 2 कंट्रीज थी इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन की डेट तय की गई थी 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन प्लान के हिसाब से इंडिया की 2 प्रोविंसेस बंगाल और पंजाब, इन दोनों प्रोविंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हिस्से को पार्ट बनना था पाकिस्तान का और दूसरे हिस्से को इंडिया का। इन दोनों स्टेट्स का डिवीजन इसलिए किया गया क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोविंसेस थे और मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स थी, मगर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे हिंदूज और सिख कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में थी। तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इन दोनों स्टेट्स को डिवाइड किया गया, और इन दोनों स्टेट्स के डिवीजन के लिए सर साइरिल रेडक्लिफ के अंडर में बाउंड्री कमीशन बनाया गया। इन्होंने पंजाब को 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। इसी तरह बंगाल का भी विभाजन किया गया और यहाँ भी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया गया। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम के सिलेट में रेफरेंडम कराया गया। सिलेट वैसे तो आसाम का पार्ट था, बट ईस्ट पाकिस्तान के एकदम नज़दीक होने के कारण इनको भी एक ऑप्शन दिया गया कि ये वोटिंग के जरिए ये फैसला करें कि ये इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं या पाकिस्तान का। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलेट दोनों ही के केस में रेफरेंडम पाकिस्तान के पक्ष में आया, इसीलिए ये दोनों एरियाज पाकिस्तान के पार्ट बन गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो रेफरेंडम कराया गया था उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है। बेसिकली यहाँ पर जो सबसे बड़े लीडर थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी खुदाई खिदमतगार, और क्योंकि ये लोग लाल रंग के कपड़े पहनते थे इसीलिए इन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो रेफरेंडम हो रहा था इसके सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते काफी सारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों ने रेफरेंडम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो जब 1946 के जनवरी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें जितने लोगों ने वोट डाले थे उसके कंपैरिजन में रेफरेंडम में सिर्फ 15% लोगों ने ही वोट डाले थे। खैर जो भी हो, इस तरह इस मैप में जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये बेसिकली पाकिस्तान बना, यानी बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब और सिलेट मिलकर पाकिस्तान बना। अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की। इंडिया में टोटल 563 यानी 563 से भी ज्यादा राजे रजवाड़े थे।
जिन्हें माउंटबेटन प्लान के हिसाब से आज़ाद कर दिया गया था। यानी अब खुद प्रिंसली स्टेट्स को डिसाइड करना था कि वो इंडिया से जुड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान से, या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। तो बेसिकली इनके पास 3 ऑप्शंस थे। इन 563 राज्य रजवाड़े में से 560 ने तो 15 अगस्त से पहले ही इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। अब बचे 3 प्रिंसली स्टेट्स। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो 15 अगस्त तक की स्थिति तो ये थी। आगे चल के इन 3 स्टेट्स का क्या हुआ वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया। देखते हैं कि 15 अगस्त को इंडिया के आज़ाद होने पर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। लोगों में गजब का उत्साह था। लोग सड़कों पर भारत के झंडे लहराते हुए आजादी का अनुभव कर रहे थे। हर कोई अपनी तरह से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा था। और यह है एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता। हालांकि इसी इंडिपेंडेंस के साथ साथ मिला पार्टीशन का दर्द भी लोगों के दिलों में था। जो लोग सदियों से साथ साथ रह रहे थे अब अचानक बिछड़ गए थे। अब बात करते हैं उन 3 प्रिंसली स्टेट्स की जिन्होंने 15 अगस्त तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था। तो सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़ को। जूनागढ़ की लोकेशन देखो मैप में, ये आज के गुजरात का पार्ट है। जूनागढ़ के रूलर थे मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड। ये थे मुस्लिम, मगर जूनागढ़ की प्रजा में मेजोरिटी हिंदूज की थी। तो 15 सितंबर 1947 में खान जी ने जिन्ना के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। इसके बाद यहाँ के हिंदू पॉपुलेशन ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को एक प्लेबिसाइट कंडक्ट किया गया। इसमें कमाल हो गया, 99.95% लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट किया। तो अल्टीमेटली जूनागढ़ जो है इंडिया का पार्ट बना दिया गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद जो है वो इंडिया का सबसे अमीर, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल प्रिंसली स्टेट था। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। यहाँ के रूलर थे मुस्लिम, इनका नाम था उस्मान अली खान। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। बट यहाँ के जो रूलर हैं इन्होंने थोड़ा अलग सोचा। इन्होंने सोचा कि ये ना इंडिया से मिलेंगे और ना पाकिस्तान से, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो उस्मान अली के पास अपनी एक आर्मी थी जिसे रजाकार कहा जाता था। इस रजाकार आर्मी के चलते इन्होंने सोचा कि इंडिया और पाकिस्तान से जो आ जाए ये निपट ही लेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने सरदार पटेल के नेतृत्व में सितंबर 1948 में हैदराबाद को एनेक्स कर लिया। ये एक आर्मी ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ की सिचुएशन थोड़ी उलट थी। जम्मू कश्मीर के रूलर थे हरी सिंह। ये हिंदू थे और वहाँ की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी मुस्लिम। हरी सिंह भी यही चाहते थे कि भैया ना तो वो इंडिया से मिले और ना पाकिस्तान से, मतलब इन्हें भी आज़ाद रहना था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर करने के लिए उस पर अटैक कर दिया। इन्होंने सोचा कि जैसे इंडिया ने हैदराबाद को एक्वायर कर लिया, ये भी जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट हो गया। हरी सिंह ने क्या किया कि 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था कि एक तरफ तो पाकिस्तान की आर्मी घुसी चली आ रही थी इनके स्टेट में, और ये आ गए भागे हुए इंडिया के पास कि भाई ये मुझे बचाओ। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इंडिया ने पाकिस्तानी फोर्सेस को काउंटर करने के लिए अपनी आर्मी भेजी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान फोर्सेस को आगे बढ़ने से तो रोक लिया, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस जितना अंदर घुस पाई थी वो एरिया अभी भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और ये रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अल्टीमेटली इंडिया मिलकर बना इन सभी ब्लू कलर में हाईलाइटेड प्रोविंसेस और 563 प्रिंसली स्टेट से, जो कि इन मैप में लाइट ब्राउन कलर से रिप्रेजेंटेड है। तो इंडियन लीडर्स के कहने पर लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना बने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली खान। माउंटबेटन प्लान में ये भी कहा गया कि ब्रिटेन के जो राजा हैं वो अब एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल यूज नहीं करेंगे। हालांकि ये टाइटल उन्होंने ऑफिशियली 22 जून 1948 को छोड़ा।